Hello, children. How are you? Are you fine? After a long waiting, I'm going to resume your English class for class 10th, your textbook book First Flight, lesson number 2. As you can see, the name of the lesson, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. This has been already on your screen, and cursor is also blinking there. See, this has been written by Nelson Rolihlahla Mandela. Nelson Rolihlahla Mandela, this is the full name of Nelson Mandela, and he is commonly known as Nelson Mandela. Since the lesson, this very lesson, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom, has been written by himself. So, all the things about him we should know. So, rather having a gossip on him, let us start the lesson, and in this lesson you can know all the things about Nelson Mandela. Let us see, before you read what is given. Apartheid, a political system that separates people according to their race. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? This is given here. You see, apartheid, what is it? Let me make you understand at first. Apartheid means this is discrimination on the basis of race, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. मतलब रेस के आधार पे, कलर के आधार पे लोगों में भेदभाव करना, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ. मतलब पहले वाइट और ब्लैक का ये इशू होता था. ब्लैक्स वेयर अंडर प्रिविलेज्ड and whites were always privileged. They were given more privilege, more facilities in society by the government as well as the society, because they were having superiority, or they understood themselves superior to other races. So this apartheid is also a discrimination based on the same racial discrimination. इसमें क्वेश्चन पूछता है कि इन तीनों देशों में से किस देश में हाल में ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था. तो यू नो दिस इज़ साउथ अफ्रीका. गिवन है साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका आप लिख सकते हैं. आगे है, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थेड. पूछता है कि हैव यू एवर लिसन्ड अबाउट this Mandela and his African National Congress? They means Nelson Mandela spent his lifetime fighting, can be said, means whole life he spent against this apartheid, or he was the leader of apartheid movement. तो फाइनली लिखता है कि फाइनली डेमोक्रेटिक elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of new nation. इसको आपको मैं हिंदी में ही बताता हूँ कि क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है. मंडेला और उनके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो अपना स्पेंट लाइफ टाइम फाइटिंग, मतलब जीवन पर्यंत उन्होंने लड़ाई करी किसके खिलाफ? यहीं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ. मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years in prison. Students, you pay attention on it. He spent 30 years in prison, jail behind the bars. He spent 30 years, मतलब 30 वर्षों तक वो जेल में रहे. इंडिया में यू नो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है तो 20 years का इम्प्रिजनमेंट होता है. मीन्स इफ समवन इज सेंटेंस्ड with life imprisonment, then he would have to spend 20 years in jail. But you see, Nelson Mandela, who fought against this apartheid, and he remained for 30 years in prison. 30 वर्षों तक वो जेल में रहे. और अंततः यहाँ फाइनली लिखता है, फाइनली डेमोक्रेटिक elections were held in South Africa in 1994, और अंततः उस वहाँ मतलब साउथ अफ्रीका में 1994 में इलेक्शन हुआ, एंड मंडेला बिकेम व्हाट? द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन. मतलब इस नए राष्ट्र के पहले
ब्लैक प्रेसिडेंट बने। इन दिस एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है पार्ट या खंड, मैं इसको लिख देता हूँ, या एक्सट्रैक्ट मीन्स पार्ट, PART, मतलब इस पार्ट में फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी यू अंडरस्टैंड, बायोग्राफी मीन्स जीवनी और ऑटोबायोग्राफी में स्वलिखित जीवनी, मतलब खुद के द्वारा लिखा हुआ जीवनी, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। स्वरचित जीवनी आप कह सकते हैं, यू कैन राइट इट। ये थोड़ा बड़ा वर्ड है जो कि यहाँ स्क्रीन पे लिखने पे थोड़ी परेशानी हो रही है। सो लेट अस सी, आगे है कि इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज बायोग्राफी, ये जो एक्सट्रैक्ट जो अभी आप लोग पढ़ने जा रहे हैं ये जो है उनके बायोग्राफी से। आगे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और उनका ये बायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब एक लंबी यात्रा, स्वतंत्रता के लिए एक लंबी यात्रा इसको कह सकते हैं। एंड दिस इज़ द नेम ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, मंडेला इसमें एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, जिसका नाम उन्होंने द इनाग्रेशन, इनाग्रेशन यू अंडरस्टैंड, शुभारंभ जिसको कहते हैं, शुभ शुरुआत है ना, ऑस्पिशियस स्टार्टिंग कह सकते हैं या शुभारंभ कह सकते हैं। इनाग्रेशन सेरेमनी होता है, शुभारंभ किसी चीज़ का, किसी संस्था का शुभारंभ किया जाता है, तो इनाग्रेशन सेरेमनी मनाई जाती है। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी, क्या आप उम्मीद गेस कर सकते हैं कि वो कौन सा अवसर हो सकता है? चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम BBC ऑफ 10 मई 1994। अब ये BBC का एक न्यूज़ है जो 10 मई 1994 का है, उसमें कह रहा है, आप अपने गेस को, जो आपने गेस किया उसको चेक कीजिए। अब ये न्यूज़ क्या है, लेट अस सी, इसको भी पढ़ करके देखते हैं। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ये टाइटल है कि मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, मतलब ये न्यूज़ है। साउथ अफ्रीका यू अंडरस्टैंड ना, साउथ अफ्रीका इज़ ए नेशन जहाँ की क्रिकेट टीम इंडिया से हमेशा, मतलब एक अच्छी क्रिकेट टीम है, हेंजी क्रोने ये सभी मतलब वहाँ के खिलाड़ी हुआ करते थे, आज भी मतलब ये टीम दमदार है, वही साउथ अफ्रीका है। लेट अस सी क्या न्यूज़ में दिया हुआ, न्यूज़ के इस एक्सट्रैक्ट में देखते हैं। गिवन हियर नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। कह रहा है कि नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, मीन्स नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड दिस वॉज आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल, मतलब 3 centuries, 1 century मतलब 100 साल का, और 3 centuries मतलब 300 वर्षों से ज़्यादा के शासन के बाद, मतलब वाइट लोगों के 300 वर्षों से ज़्यादा के शासन के बाद पहली बार एक ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका का बना। लेट अस सी आगे, मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये मंडेला की एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जिसका नाम ANC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का INC है, वहाँ का ANC है। तो ये लिखता है what is given there, let us see। here given ANC party won 252 of 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history, मतलब साउथ अफ्रीका के इतिहास में फर्स्ट डेमोक्रेटिक जो इलेक्शन हुआ, पहला प्रजातांत्रिक इलेक्शन हुआ जिसमें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने, इस पार्टी ने 400 में से 252 सीटें जीत गई। तो 400 में से 252 सीट जीत जाने का मतलब कि उसको स्पष्ट बहुमत हो गया, मेजोरिटी हो गई। द इनागोरेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर्स इन प्रिटोरिया टुडे। अब देखिए क्या है, इनागोरेशन सेरेमनी कहाँ हुआ, तो दिस इनागोरेशन सेरेमनी टुक प्लेस वेयर इन द यूनियन बिल्डिंग्स, ये यूनियन बिल्डिंग जो एम्पी थिएटर प्रिटोरिया, प्रिटोरिया मतलब जिस दिन का ये न्यूज़ है तो प्रिटोरिया में जगह है, वहाँ एम्पी थिएटर बिल्डिंग में, एम्पी थिएटर मीन्स यू शुड नो अ बिल्डिंग विदाउट रूफ, एक ऐसा बिल्डिंग होता है जिस पे रूफ नहीं होता है,
इसमें बहुत सारे सीट्स होते हैं और इसमें मतलब इनागुरेशन सेरेमनी हुआ अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें 140 देशों से भी ज़्यादा के राजनीतिज्ञ और बड़ी बड़ी हस्तियां भाग लिए। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द operations of one by another, said नेल्सन मंडेला in his address। अब नेल्सन मंडेला अपने संबोधन में उन्होंने क्या कहा, नेवर नेवर अगेन, मतलब ऐसा फिर कभी नहीं होगा जिसमें यह सुंदर सा देश, जिसमें एक ग्रुप का दूसरे के द्वारा ऑपरेशन या दमन का अनुभव कभी नहीं करेगा। मीन्स such activities what took place in Africa, white supremacy and the operation by the white on the black would never be practiced or never be experienced in South Africa. This was the address speech of नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का यह एड्रेस स्पीच था, जिसमें उन्होंने ये एड्रेस किया था कि साउथ अफ्रीका में ये ऐसा कभी नहीं होगा जिसमें एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप द्वारा दमन किया जाएगा, ऑपरेस किया जाएगा। ऑपरेशन का मतलब यहाँ ऑपरेशन मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड दमन। दमन का मतलब आप समझते हैं, जैसे सरकार दमन करती है या कोई दूसरा दमन करता है तो ये दमनकारी नीति या दमन करना, उसी को ऑपरेशन कहते हैं। मतलब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर दमन करेगा ऐसा कभी नहीं होगा साउथ अफ्रीका में, नेल्सन मंडेला ने अपने पहले ही स्पीच में, एड्रेसिंग स्पीच में उन्होंने कहा। नाउ लेट अस सी later given jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. More than 100,000 South African men, women and children of all races sang and danced with joy. Yes, this scene was very much jubilant because in the street of Pretoria more than 100,000 means more than 1 lakh people of different colors, cannot be said only blacks or only whites, but given here blacks, whites as well as colored, they all celebrated it together and they also sang and danced with joy. कहता है कि ये सीन बहुत ही जुबिलेंट था जिसमें 1 लाख से ज़्यादा अफ्रीकन पुरुष, औरत और बच्चे बिना किसी रेशियल डिफरेंसेस के, मतलब सभी रेसेस के सभी वर्गों से एक साथ झूमे, नाचे, गाए और इसको एंजॉय करें। आगे स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू हेयर एक्टिविटी गिवन दैट यू हैव टू मैच इट। व्हाट इज गिवन हियर, लेट अस सी। In column A are some expressions you will find in the text. Make a guess and match each expression with an appropriate meaning from column B. What is given here? Let us see. Column A में क्या दिया हुआ है देखिए, लिखता है, थोड़ा सा और स्क्रीन को मैं ऊपर करता हूँ। देखिए दोनों कॉलम हो गया, कॉलम A एंड कॉलम B। लिखता है a rainbow gathering of different colors. Rainbow, you understand, rainbow is having different colors. 7 colors are given in rainbow. So a rainbow gathering means a gathering in which people from different colors, people from whites, blacks and colored, they all would be together. तो that this is called rainbow gathering. तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं किसमें आता है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखता है ये वाला कर्सर, आई एम ब्रिंगिंग कर्सर हियर, अ ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल लाइक द कलर्स इन अ रेनबो। तो ये आप 1 नंबर यहाँ लिख सकते हैं, 1 नंबर मैं यहाँ डाल देता हूँ, ये 1 हो जाएगा, 1। नाउ लेट अस सी। उसके बाद है द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। अब वाइट सुपरमेसी, व्हाट इज वाइट सुपरमेसी, लेट अस सी। वाइट सुपरमेसी गिवन, वाइट सुपरमेसी मतलब गोरे लोगों की सुपरमेसी। तो आप यहाँ देख सकते हैं द सेंटर ऑफ रेशियल, कर्सर मैं यहाँ लाता हूँ, यहाँ देखिए द सेंटर ऑफ रेशियल सुपेरियरिटी यहाँ आता है। तो 2 कैन बी रिटन ओवर हियर, लेट अस सी। here 2 can be written here 2, this will be 2,
ये 2 हो गया। द सेंटर ऑफ रेशियल सुपेरिटी, तो सुपेरियरिटी ये हो गया, ये दूसरे का। नाउ बी ओवरवेल्म्ड विद सेंस ऑफ हिस्ट्री। अब बी ओवरवेल्म्ड विद सेंस ऑफ हिस्ट्री आप देखिए कौन सा हो सकता है। लेट अस सी इट। व्हाट इज गिवन, रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द पास्ट इवेंट्स। ये है बी ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री इतिहास जो अतीत है उससे बिल्कुल ओवरब्रीम हो जाना, बी ओवरवेल्म्ड का मतलब। तो इसका जोड़ा ये है, रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द पास्ट इवेंट्स दैट हैव लेड अप टू द मोमेंट। तो आप इसको वो कर सकते हैं, ये आपका हो गया थर्ड। ये है फील डीपली इमोशनल, यहाँ से है फील डीपली इमोशनल, यहाँ से शुरू होता है क्योंकि ओवरवेल्म्ड वर्ड दिया हुआ है, तो फील डीपली इमोशनल हो जाएगा। थर्ड नंबर ये आप डाल सकते हैं, दिस इज थर्ड मैचिंग। अब आगे है, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन। फोर्थ नंबर, resilience that defies the imagination. Then this 4-1, let us read it. Resilience you should understand means this is a capacity to cope up the difficult situations. मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन से कॉप अप करने का या बाहर निकलने की जो क्षमता होती है उसको रेजिलियंस कहते हैं। तो रेजिलियंस मीन्स कह सकते हैं ऊपर ही अ ग्रेट, यहाँ सी द कर्सर, अ ग्रेट एबिलिटी ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल टू रिमेन अनचेंज्ड, या यही होगा। तो आप फोर्थ को यहाँ ये लिख सकते हैं, इसको मैं फोर्थ यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज फोर्थ। नाउ रेस्ट वन अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी, फिफ्थ। तो ह्यूमैनिटी, अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी, लेट अस सी व्हाट वुड बी दिस। इसमें देखते हैं कौन सा होगा फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर के लिए आप कह सकते हैं ह्यूमैनिटी, मानवता से रिलेटेड है। अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी, तो अ साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग, गुडनेस, काइंडनेस, पीटी, जस्टिस एक्सेट्रा। ये फिफ्थ नंबर जो है इसको आप यहाँ ये लिख सकते हैं जहाँ कर्सर है, हाँ उसको मैं फिर लिख देता हूँ। लेट अस से दिस विल बी फिफ्थ, ये फिफ्थ हो गया। अ साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग, जिसमें गुडनेस ये दिया हुआ है, तो ये फिफ्थ हो गया। नाउ सिक्स्थ क्या है, अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस। तो ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, लेट अस से इसको पहले डिलीट कर दूँ मैं। अब उसमें जो बच गया, कौन सा बच गया, ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको। तो हाँ, ट्विलाइट यू अंडरस्टैंड, दिस इज अ टाइम बिटवीन डे एंड नाइट के बीच का जो समय होता है गोधूली, इसको ट्विलाइट कहते हैं। तो ट्विलाइट के लिए आप जो ये बचा हुआ है कौन सा, हाफ सीक्रेट लाइफ, ये आप इसको कह सकते हैं, इसका ये जोड़ा होगा सिक्स्थ नंबर, ये हो गया। तो बाय दिस वे स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी मैच्ड देम। नाउ मूविंग हेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट में। आगे में क्या देता है, आगे ये टेक्स्ट देता है, लेट अस सी। What is written here? 10th May dawned bright and clear. 10th May means this would be the day for taking oath ceremony. ये oath ceremony लेने का दिन था, मतलब इसी दिन इनाग्रेशन या ये नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति का शपथ लिए थे, इसलिए 10th May dawned bright and clear means 10 मई का सुबह जो था एकदम सुंदर और स्पष्ट था, क्लियर था। सुंदर था मतलब ब्राइट एंड क्लियर था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइज्ड बाय डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु आर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट्स बिफोर द इनाग्रेशन। लिखता है
कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज मतलब पिछले कुछ दिनों से आई हैड बिन प्लेजेंटली बिसाइड, बिसाइड का मतलब सराउंडेड या घिरा हुआ, यहाँ हेयर मीनिंग गिवन ऑलरेडी इन योर टेक्स्ट. तो आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइड बाय डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स who were coming to pay their respects before the inauguration. Means in this line he wants to say that for the past few days he had been surrounded by, pleasantly surrounded by different dignitaries and world leaders from different parts of the world, and as they were coming to pay their respects and they were coming to participate in the inauguration ceremony. इसमें यह है कि पिछले कुछ दिनों से बहुत ही खुशी खुशी वो दुनिया के नेताओं और महान व्यक्तियों द्वारा घिरे हुए थे. वो सभी के सभी इस इनागुरेशन सेरेमनी में भाग लेने के लिए और अपना रिस्पेक्ट पे करने के लिए आ रहे थे, अपना रिस्पेक्ट या अपना आदर देने के लिए आ रहे थे. कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स. तो फिर लेट अस सी द नेक्स्ट. Given here, the inauguration would be the largest gathering over the international leaders on South African soil. और ये इनागुरेशन जो था ये लार्जेस्ट गैदरिंग था, मतलब दिस वुड बी द लार्जेस्ट वन गैदरिंग बिकॉज द पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, द लीडर्स एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम डिफरेंट countries, they were coming to South Africa. This is why this was the largest gathering. अभी तक का सबसे बड़ा गैदरिंग था, सबसे बड़ा बड़े बड़े नेताओं और डिग्नेटरीज का एक बहुत ही बड़ा एक गैदरिंग था जिसके बारे में ये बता रहे हैं, नेल्सन मंडेला बता रहे हैं. आगे है लेट अस सी. हियर गिवन द सेरेमनीज took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. अब सेरेमनी कहाँ हुआ? तो ये सेरेमनी प्रिटोरिया के सैंडस्टोन से बना हुआ एम्पी थिएटर में. एम्पी थिएटर मतलब मैं बताया, बगल में मीनिंग भी दिया हुआ है, एक ऐसा बिल्डिंग जिसके ऊपर छत नहीं होता है, खुला होता है, विदाउट रूफ होता है. तो उसमें ये सब के सब वहीं ये होने वाला था, ये सेरेमनी, ये उत्सव वहीं होने वाला था. फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वर्ल्ड सुपरमेसी. और दशकों से, डिकेड का मतलब दशक, और 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स होता है. इसका मीनिंग मैं लिख देता हूँ. 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स. आप कह सकते हैं 10 ईयर्स, 10 YRS में लिख देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म है ईयर का. तो 10 ईयर्स का एक डिकेड होता है. यहाँ 4 डिकेड्स मतलब दशकों से कह सकते हैं, दशकों से ये था. 4 डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी. दशकों से यहाँ वाइट लोगों की सुपरमेसी थी, मतलब वाइट लोग ही यहाँ बैठते थे, या वाइट लोगों के ही राष्ट्रपति है, जो कुछ भी प्रशासन या शासन उन्हीं का चलता था. एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. लिखता है कि एंड नाउ, लेकिन अब इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग. अब एक रेनबो गैदरिंग का साइट हो गया था, मतलब एक ऐसा दृश्य हो गया था जिसमें सभी कलर के लोग, इसमें किसी भी बिना भेदभाव के सभी तरह के लोग, अलग अलग कलर्स के, इस साउथ अफ्रीका के पहले प्रजातांत्रिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट, मतलब एक ऐसा गवर्नमेंट जो कि रेस के आधार पर ना हो, प्रजाति जाति के आधार पर ना हो, किसी कलर के आधार पर ना हो, वैसे गवर्नमेंट के लिए ये वहाँ का एक गैदरिंग था जो रेनबो गैदरिंग था. मतलब ये ऐसा साइट था जिसमें पहली बार अलग अलग कलर के लोग एक प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट के इंस्टॉलेशन में भाग लेने के लिए बैठे थे. ऑन द लवली ऑटम डे आई वॉज एक्म्पेनिड बाई माई डॉटर जेनाने ऑन द पोडियम. कह रहे ऑन द लवली ऑटम डे. ऑटम यू अंडरस्टैंड, दिस इज द नेम ऑफ सीजन. लवली ऑटम डे कह रहे हैं, मतलब प्यारा ऑटम का डे था. ऑटम यू नो इन इंडिया दिस इज नोन एज पतझड़, पतझड़ का मौसम, पतझड़ सीजन, ऑटम सीजन था. एंड ही वॉज एक्म्पेनिड विद हिज डॉटर जेनानी. जेनानी के साथ पोडियम पर ये थे. पोडियम यू अंडरस्टैंड विच इज़ यूज्ड बाय द स्पीकर्स टू गिव देयर स्पीच, और व्हेनेवर दे ऑरेट दे यूज इट. पोडियम का इस्तेमाल हम लोग जानते हैं, आप लोग कि सब बोलते समय एक डेस्क के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ माइक रहता है उसको पोडियम कहते हैं.
और भी कौन कौन से थे? ऑन द पोडियम हिज डॉटर जेनानी, मिस्टर डी क्लर्क वॉज शॉर्न इन अ सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। और मिस्टर डी क्लर्क थे, इनकी बेटी जेनानी थी, और मिस्टर डी क्लर्क थे जो कि डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में वहाँ स्वेर होने करने जा रहे थे। स्वेर मतलब शपथ लेने जा रहे थे, स्वर्ण इन मतलब शपथ ग्रहण किए। आगे देन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ नेल्सन मंडेला, दिस इज द फोटो, यू कैन सी हिम। आगे लिखता है थाबो मबेकी। उसके बाद कौन कौन है इनके साथ? थाबो मबेकी, पहली उनकी बेटी जेनाने, दूसरा डी क्लर्क और तीसरा थाबो मबेकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। अब ये एक ही नाम है शायद, लेट अस सी, एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। अच्छा, सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में ये थे, विच वन? डी क्लर्क। एंड थाबो मबेकी एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, ये फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में थे। आगे है व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरा टर्न आया मतलब मेरी बारी आई, आई प्लीज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, टू द assembled guests and the watching world। यहाँ लिखता है कि आई प्लेज टू ओबे, मतलब मैं भी शपथ लिया, क्या करने के लिए? मतलब संविधान के नियमों को, संविधान के अनुसार शासन करने, क्या है, संविधान के अनुसार चलने का। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही ऑल्सो स्वर्न इन टू डू हिज एक्टिविटीज, वेदर the activities related to ruling or whatever, this should be as per the constitution. Later given here, devote myself to the well-being of the republic and its people. He also sworn in or pledged to devote himself for the well-being of the republic एंड द पीपल, मतलब वहाँ के लोगों के और राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पण का इन्होंने शपथ ली। आगे लिखता है टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, मतलब यहाँ जो इकट्ठे हुए गेस्ट थे और जो दुनिया हमें देख रही थी, उन सबके लिए आई सेड, मैंने कहा, टुडे मैंने कहा मीन्स नेल्सन मंडेला ने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। इस लाइन को समझते हैं जिसमें उन्होंने अपने स्पीच में कहा है कि आज ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हेयर, मतलब हम लोग सभी अपनी उपस्थिति से इस बात को, कन्फर मीन्स हेयर गिव, इस ग्लोरी को, ग्लोरी यू अंडरस्टैंड, महिमा कह सकते हैं, एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, मतलब इस अभी नवजात लिबर्टी और स्वतंत्रता को ग्लोरीफाई करने के लिए सभी हम लोग अपना प्रेजेंस देते हैं, अपने प्रेजेंस में इस बात को पूरी तरह से रखते हैं कि क्या, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, मतलब ये हम लोगों का ये अनुभव रहा। कैसा अनुभव रहा? तो ह्यूमन डिजास्टर जो मतलब एक विपदा के रूप में था। कैसा विपदा के रूप में था? ये डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि लंबे समय तक चला। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, मतलब वी शैल हैव टू बियर सच अ सोसाइटी, हम लोग को एक ऐसे सोसाइटी को जन्म देना है जिसमें सभी ह्यूमैनिटी, मतलब सारी मानवता एकदम पूरे गर्व के साथ कायम रह सके। मतलब एक ऐसी सोसाइटी को जन्म देना है जिसमें मानवता गर्व करे। आगे है, वी हु वेर आउट लॉस्ट नॉट सो लॉन्ग एगो
have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possessions with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. Here given, let us see, we who were outlaws. outlaws का मतलब आप समझते हैं, outlaws जिनको हम लोग ऐसे व्यक्ति कहते हैं जो कि कानून के सामने या कानून के समक्ष वो गैर कानूनी कहे जाते हैं या आउटलॉज कहे जाते हैं, उनको कह सकते हैं एक क्रिमिनल के रूप में उनके साथ बिहेव किया जाता है। यहाँ पहले ये लोग जितने भी ब्लैक थे सब के सब आउटलॉज थे। वहीं यहाँ लिखा हुआ है कि वी वेयर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, मतलब हम लोग पहले आउटलॉज के रूप में, जो बहुत पहले की बात नहीं है, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, जो कि एक दुर्लभ प्रिविलेज हमें दिया गया। कौन चीज़ का? टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, मतलब दुनिया के राष्ट्रों का अपने सॉइल पे, अपने मिट्टी पे होस्ट करने का हमें ये प्रिविलेज दिया गया, जो कि हम लोग कुछ दिन पहले ही, बहुत ज़्यादा दिन पहले नहीं, कुछ दिन पहले तक हम लोग आउटलॉज कहे जाते थे। आगे, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशंस विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज, आफ्टर ऑल, अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। आगे कहते हैं कि ये थैंक क्यों बोलते हैं, ही थैंक्ड all the international guests, all the international dignitaries who gathered over there, and at last he is saying that after all it was a common victory, means this was a victory for the people of South Africa, and this was the victory for justice, peace and human dignity। ये एक जीत थी कौन चीज़ की? न्याय की, शांति की और मनुष्य के अपने डिग्निटी की, मनुष्य की अपनी गरिमा की जीत थी। आगे, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन। इमांसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस। यहाँ बगल में दिया हुआ कि वी हैव एट लास्ट, अंत में हम लोगों ने अपना राजनीतिक मुक्ति प्राप्त किया। वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, deprivation and suffering, gender and other discrimination। आगे ये कहते हैं कि वी प्लेज, मतलब हम लोग शपथ लेते हैं। कैसा शपथ लेते हैं? तो वी प्लेज, शपथ लेते हैं हम लोग अपने आप में, टू लिबरेट मतलब स्वतंत्र करने का, किनको? ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीबी का ये जो बंधन है, निर्धनता का ये बंधन, डेप्रीवेशन मतलब वंचित रहने का, डेप्रीवेशन यू अंडरस्टैंड गिवन हियर, स्टेट ऑफ नॉट हैविंग ओन्स राइटफुल बेनिफिट्स, मतलब जो ये वंचित रहने का, सफरिंग पीड़ित होने का, जेंडर मतलब ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या और भी जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है, उन सब से इमांसिपेशन का या उनसे मुक्त होने का हम लोग क्या करते हैं? आज शपथ लेते हैं। मीन्स इन दिस इनॉग्रेशन सेरेमनी ही सेड दैट they all pledged to make the people free from all these things, means bondage of poverty, deprivation, suffering as well as discrimination. Never, later he spoke, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. And he also said that never, 3 times he has quoted already, never and never, means this will never happen that once more in South Africa one group will be oppressed by another group, means this would never happen in South Africa under his reign or under his leadership, that one group, social group or one race would be oppressed by another race in South Africa in his political leadership। उनके लीडरशिप में ऐसा कभी नहीं होगा
कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के द्वारा ऑपरेस किया जाएगा या दमन किया जाएगा. दिस हैज़ बीन सेड बाय हिम. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका. आगे उन्होंने कहा कि द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, मतलब ये जो अचीवमेंट हुआ है, ये अचीवमेंट इतना व्यापक अचीवमेंट है या बड़ा अचीवमेंट है कि नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस, मतलब इतना ग्लोरियस सन इट वुड नेवर सेट ऑन, मीन्स सन वुड नेवर सेट ऑन दिस मच ग्लोरियस एज अ ह्यूमन अचीवमेंट. मतलब जो ये उपलब्धि हुई है ये सबसे बड़ी गरिमामयी उपलब्धि है, सबसे महान उपलब्धि है. और इसको सन से तुलना किया गया है कि इतना बड़ा उपलब्धि ऐसा कभी नहीं हो सकता. लेट फ्रीडम रेन, चलिए स्वतंत्रता शासन करे. गॉड ब्लेस अफ्रीका, मतलब भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दें. आगे है अब ओरल कंप्रीहेंशन में है, वेयर डिड द सेरेमनीज टू टेक प्लेस, देन आंसर यू नो, आंसर कैन बी रिटन. तो you know this is in Pretoria, as it has been mentioned already. The ceremony took place in Pretoria. Where है तो प्रिटोरिया नाम पूछ रहा है. कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन. अब यहाँ कह रहा है कि आप इंडिया में कोई एक बिल्डिंग का नाम बताएंगे जो सैंडस्टोन से बना हुआ है. तो सैंडस्टोन से तो रेड फोर्ट भी बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ. तो दिस बिल्डिंग यू कैन नेम. कैन यू से दैट कैन यू से हाउ 10 May इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका. 10 May इज़ ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका. अब आपको ये बता कैसे, क्या आप कह सकते हैं कि कैसे ये 10 May जो होगा ऑटम डे होगा. तो इंडिया में ऑटम कब होता है और वहाँ 10 May ऑटम डे था, तो ये कैसे होगा. तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल लोकेशंस ऑफ साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका का जो जोग्राफिकल लोकेशन है अर्थ के ऊपर इक्वेटर के हिसाब से, तो इस हिसाब से हम ये आंसर उसका दे सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन गिवन हियर. व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन गिवन हियर. दिस ही एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर. मंडेला ने इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कहा. व्हाट डज ही मीन बाय दिस. व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड. तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कैसे है. तो दिस वॉज ऑफकोर्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर बिकॉज यू नो देयर वन रेस वॉज ruled by another race, and ruling was not just a ruling, this was operation, means blacks were oppressed by whites there, and white were it was understood or considered that whites were superior to them. उनके द्वारा इनके ऊपर अत्याचार किया जाता था और वे अपने आप को सुपीरियर समझते थे. आगे लिखता है व्हाट डज ही मीन बाय दिस. उनका क्या मतलब है. तो यही है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मीन्स दिस वॉज कैन बी सेड अ डिजास्टर बिकॉज द ब्लैक वेयर ऑपरेस्ड बाय द वाइट देयर, एंड द ब्लैक वेयर नॉट गिवन any right to participate in government or any government activities, or they were not given privileges. आगे है कि what is glorious human achievement. तो ये glorious human achievement कैसे है. तो of course this was a great achievement, human achievement, because now everyone would be equal there. There would be no discrimination on the basis of this color. तो ये बात आप लिख सकते हैं. आगे है कि what does Mandela thank द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर. किस लिए उनको थैंक किया. तो ही थैंक्स फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन दैट इनॉग्रेशन सेरेमनी बिकॉज द लीडर ऑफ द वर्ल्ड डिग्नेटरीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड एंड ऑल्सो बिकेम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर साउथ अफ्रीकन लीडर्स. आगे है व्हाट आइडियल्स डज द ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका. कौन सा आइडियल उन्होंने सेट किया. तो यू नो
he has already said that in coming future there won't be any sort of discrimination on the basis of race, gender. This has been given already in the last line, and he said that they took place, or they sworn in to emancipate the bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, as well as other discrimination. This was the ideals which has been set by Nelson Mandela there. Now students, this was the first part, and we shall see once again in the second part. Means after this, so far we have studied till oral comprehension check, and in the coming clip, in the next clip, we shall start the remaining portion of it, means a few moments later. So till that, let us bye each other, one another goodbye, and we shall see again in the next clip. Thanks a lot.